Hello everyone, welcome back to All About SCM and Logistics channel. My name is Arvind Kumar. Today I have started conducting session on Excel. I hope you would like this particular session and do tell me with your comments and suggestion how did you liked it, and if you want me to cover any new topics over Excel, please do tell me. So let's start. Please watch it till the end. So guys, I'll start the session now. So first of all, I welcome you all in this session, and before I start the session, I would just like to introduce myself, so that you know the man a little bit whom you are receiving the knowledge. So my name is Arvind Kumar, guys, and right now I am working as a data analyst in an IT firm, and I have 5 years of experience into the different verticals, into different domains, and I have delivered training in logistics vertical, and few people also know me. I guess Rian know me, and I have experience in as quality analyst as well. I was working in e-commerce company, and right now I'm working, as I said, as a data analyst into an IT firm. This is the a little bit in a little intro about me, and I'm just starting on the session now. If you guys allow me to do so, so shall I start the session now, or anyone is coming to join in? Rian, I should start the session. Anurup, should I? Bhai, everyone joined. Yeah, everyone joined. Yeah, from my side. So we good to go. Okay, so I am starting on with the session. I hope you guys are able to see my computer screen. So can anybody but just confirm me? Are you able to see my computer screen? Yeah, we can see it. So go it like a full screen sharing. There will be option, right? Or just delete the extra. Okay. Okay. Yes, much better. These will be the topics, some of the topics that I'll cover today. I hope I'll try to cover the maximum topics I can in this 1 hour. And if anybody wants to ask something, they can surely ask. And apart from these topics, also, if you want to know anything about Excel, or you have any query, you have some data in your hand and you want me to tell you or guide you through it, whatever you want to do with the data, so you can of course pin me and I'll go with your queries as well. So I'll start the session. There are some basic things, sum, min, max, average, count, and count a. So I'll start with a few of the basic things. Okay, let me open the data. Okay, I have this small amount of data that I'll use for go with all the things. So there is mix, and one is coming to join with the Pujari. Okay. Okay, people are still joining. Okay, I welcome you all once again who have joined a little late. Thank you everyone for joining in. So guys, sum, I think everybody know about sum. There is a simple formula for sum is equals to sum, and we can do this in this way. Actually, this is the data. Let me introduce about the data first of all. This is the data of a random data I have taken. UPC means the unique product code. Every product you have seen a bar printed on any product, so that is the UPC code of that product. And this is the product name. I have taken the product name as the mobile companies.
So Realme, OnePlus, Apple, MI, Samsung, STC, and Micromax. These are the some mobile companies. I've taken them as product name, and then it comes the quantity, quantity that we have, and let me name it as quantity left, and column D is unit sold, कितनी units sold रही हैं, and column E is the profit gained on every product. And right now I have just calculated in front of you the overall profit. This is the overall profit that I have calculated in front of you. This is the overall profit. So this is the simple formula of sum that I have used to calculate this. Likewise, you must be having some data of your company, and you can also do so. And suppose if I want to achieve in this data, I want to know that which product have actually contributed maximum into my profit. So first of all, I'll try to know कि maximum profit कौन सा है, कौन सी वैल्यू है मैक्सिमम प्रॉफिट की. So that I can do with from using simple formula of max. And I am able to know that 316856 is the maximum value in this particular data. और ये जो डेटा है मतलब ये जो प्रॉफिट है ये मैक्स का है, that I can see. So this I have you have a small amount of data. Right now I have only 8 rows of data. You must be having 1000 rows of data. So you must be मतलब there could be a question in your mind कि मुझे तो दिख ही रहा है यार माइक्रोमैक्स का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है. तो मे बी आपके पास 1000 रोज का डेटा हो आपकी कंपनी के पास और आपको मतलब पता ना हो यार कि यार ये मतलब in that case मतलब it will be very difficult for you to find कि आप 1000 रोज का डेटा होगा आपके पास तो आप ऐसे स्क्रॉल करके तो देखोगे नहीं. तो in that case this will be useful for you, right? So ये मैक्सिमम प्रॉफिट है मुझे मिल रहा है माइक्रोमैक्स में, that I can see. उसके बाद अगर मैं मिनिमम चेक करना चाहूँ तो ऐसा ही मिनिमम का फॉर्मूला होता है. एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो दैट स्टार्ट्स विद इज इक्वल्स टू, एंड आई विल सेलेक्ट द रेंज जहाँ से मुझे करना है एंड इज इक्वल्स टू. सो 134092 मैंने कंट्रोल F किया, मैंने सर्च करा 12052, ये रहा, ये मेरा MI में आ रहा है, ठीक है. अब आपके अंदर पास ये भी क्वेरी आ सकती है यार मैं कंट्रोल F करके ही फाइंड क्यों करूं, राइट? मतलब मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला मुझे दे दो जहां पर ये मैं मैक्स मिनिमम का फॉर्मूला लगाऊं और मैं ऐसा कुछ फॉर्मूला हो जिससे कि मतलब प्रॉफिट तो ठीक है बट मुझे उस प्रोडक्ट का नाम आ जाए, ठीक है. डायरेक्ट प्रॉफिट की जगह मतलब नेम आ जाए तो दैट वुड बी इवन मोर हेल्पफुल फॉर मी टू सी, ठीक है. तो मैं यहाँ पर एक नेस्टेड फॉर्मूले का यूज़ करूँगा. इसमें सबसे पहले मैं लुकअप करूँगा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट का नाम है, फिर उसमें एक मैं मल्टीपल फार्मूलाज के यूज़ से ये कर सकता हूँ, ठीक है. मैं आपके सामने भी करके दिखाऊंगा. सबसे पहले मैं VLOOKUP यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग पहले यूज़ करूँगा फिर उनको एक साथ यूज़ करूँगा. अच्छा VLOOKUP पहले आपने कई बार लगाया होगा तो मेरे हिसाब से आपने अभी तक शायद VLOOKUP जो यूज़ किया होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ VLOOKUP होता है. सपोज अगर मुझे यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट नेम जो है, प्रोडक्ट नेम से मुझे ये गेस मतलब ये मुझे ये निकालना है कि OnePlus प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट हुआ. फॉर एग्जाम्पल I'll come to the question I raised earlier, but फॉर एग्जाम्पल अभी के समझने के लिए उसको मैं पहले नॉर्मल VLOOKUP लगाता हूँ, उसके बाद मैं नेस्टेड फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा. तो मुझे सपोज VLOOKUP लगाना है, मतलब मुझे ये जानना है OnePlus का प्रॉफिट कितना है, तो मैं सिंपली VLOOKUP लगाऊंगा. और अरविंद भाई वॉइस ब्रेक हो रही है अगर ओके, इज इट बेटर नाउ? ठीक है ओके, अभी थोड़ा बेटर हुई.
हाँ ठीक है, पहले से भी क्लियर है, पहले भी लगभग क्लियर आ रही थी, पता नहीं रियान भाई को अनक्लियर जा रही है, वैसे क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके रियान, इज इट बेटर फॉर यू नाउ? आर यू देयर? Okay, I think he is trying to maybe reconnect his internet. I'll continue with the session. Okay, तो हम अभी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वन प्लस जो प्रोडक्ट नेम है उसका प्रॉफिट कितना है। तो हम ये एक वीलुकअप, सिंपल वीलुकअप लगाएंगे। वीलुकअप अच्छा एक्सेल में कोई भी भाई आई थिंक मतलब या तो मुझे वॉइस लॉस हो रही है और लाइक इवन other than Praveen, can anybody confirm if they are able to hear me, or is it with everyone? Yes, you are audible properly. Rian, can you try to clear. reconnect? Actually, many people are able to hear. I think. It's clear, sir. Okay, 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 okay. Okay, Rian, can you try to reconnect? Okay, should I continue with the session? Rian, are you there? He's trying to reconnect, I think. So Okay. we can start. Okay. So I'm trying to start this session. I'll start this session. Okay. तो VLOOKUP अभी हम सिंपल लगा रहे थे और एक्सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल ना मतलब इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ एक्सेल, कोई भी फॉर्मूला लगाने के बाद एक बार अगर हम टैब प्रेस करते हैं ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने इज इक्वल्स टू लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने VLOOKUP लगाया, तो उसके बाद अगर मैं टैब दबाऊंगा ना तो इस फॉर्मूले का एरे आ जाता है, ठीक है। एरे मीन्स दिस थिंग, दिस लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा रेंज लुकअप। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट एक्सेल इज ट्राइंग टू टेल अस। ये इसमें ऑलरेडी ये बता रहा है कि मुझे क्या क्या वैल्यूज चाहिए, ठीक है, इस फॉर्मूला को लगाने के लिए। पहले सबसे पहले ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब लुकअप वैल्यू बोले तो किसका आपको कौन सी वैल्यू जिससे आपको लुकअप करना है, तो मुझे वन प्लस से लुकअप करना है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी टेबल क्या है, डेटा क्या है आपका, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मुझे मेरा डेटा है वन, ये मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, आपको जो डेटा लुकअप करना है वो कौन से कॉलम में है। अगर मैंने इस रेंज जो मैंने सेलेक्ट करी इसमें मैं ध्यान दूं तो मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कौन से कॉलम में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो प्रॉफिट इज ऑन फोर्थ कॉलम, आई विल प्रेस 4। उसके बाद मैं अगेन कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद ये मुझे पूछता है ट्रू मैच, ट्रू है या फॉल्स है, तो मुझे एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है। फॉल्स इज फॉर एग्जैक्ट मैच, ट्रू इज फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। तो मुझे जीरो मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में अगर यू हैव स्टडीड अबाउट कंप्यूटर्स इन योर स्कूल, सो उसमें आपको बताया गया होगा जीरो मीन्स आपका फॉल्स होता है एंड वन मीन्स आपका अप्रोक्सीमेट होता है। तो आप इसको ब्रैकेट क्लोज करके बंद कर सकते हो। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, वन प्लस का प्रॉफिट आपका इतना आ गया, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ मतलब अप्लाइंग VLOOKUP basically. I hope you guys are clear. Guys, am I clear to you how to apply VLOOKUP? I hope I am clear. Okay, Hemant, welcome. Yeah, yes, sir, you are. Yeah, Okay, you are. Thank you. Okay, thanks Neetu for confirming. तो अब हम आगे बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था मिनिमम प्रॉफिट क्या है, मिनिमम प्रॉफिट क्या है मुझे ये तो पता चल गया, बट किसका है, तो ये मैं पता करने के लिए अभी आपके ही सामने एक रिवर्स VLOOKUP लगाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली VLOOKUप जो लगता है, मैंने डेटा लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट किया था अभी, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू से ये वैल्यू प्रोडक्ट का नाम लुकअप करने की कोशिश करूंगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिवर्स लुकअप।
ठीक है, मतलब मैं प्रॉफिट से ये लुकअप करने की कोशिश करूंगा कि प्रोडक्ट का नाम क्या है जिसका मिनिमम प्रॉफिट है। तो मैंने वी लुकअप दबाया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने लुकअप वैल्यू ले ली। मेरी लुकअप वैल्यू ये है, सॉरी, मेरी लुकअप वैल्यू ये है। मिनिमम प्रॉफिट विल बी द लुकअप वैल्यू, क्योंकि मैं इससे ही इसको लुकअप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे ये टेबल रेंज एरे पूछेगा। अब टेबल एरे में मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट टू राइट भी लुकअप में सेलेक्ट करता हूँ। तो दिस इज द बेसिक स्टैंडर्ड थिंग फॉर एक्सेल। एक्सेल यही समझता है कि अगर आप लुकअप लगा रहे हो तो आप लेफ्ट टू राइट ही रेंज मान के चल रहे हो। तो हमें एक्सेल को बताना पड़ेगा कि आप लेफ्ट टू राइट मत मानो, अदरवाइज एक्सेल सुनेगा नहीं हमारी। तो उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, चूज का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मूला इन एक्सेल कॉल्ड एज चूज। अब इस चूज के फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले आपको डिफाइन करनी है कि राउंड कितनी रेंज आपको लेनी है। मुझे 2 रेंज लेनी है। एक मेरी ये रेंज हो गई प्रॉफिट वाली रेंज, और मुझे प्रोडक्ट का नाम लुकअप करना है तो दूसरी मेरी ये रेंज हो गई। अगर मुझे इनका यूज करना होता तो मैं यहाँ पर 3 डाल देता। तो मुझे 2 ही रेंजेस का यूज करना है। मुझे एक ई रेंज का यूज कर, ई कॉलम का यूज करना है, मुझे एक बी कॉलम का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में 1,2 डाल दिया। उसके बाद मुझसे ये पूछ रहा है कि पहली रेंज कौन सी है आपकी, तो मैं कह दूंगा भाई पहली रेंज ये है क्योंकि मैं इससे लुकअप कर रहा हूँ। फिर ये मुझसे पूछ रहा है आपकी दूसरी रेंज कौन सी है, तो मैंने कॉलम बी सेलेक्ट कर लिया। ये मेरी हो गई दूसरी रेंज, ठीक है। फिर ये चूज का फॉर्मूला हो गया क्लोज। अब इस टेबल एरे के अंदर अभी तक मैं टेबल एरे में चल रहा था, तो मैंने एक्सेल को बता दिया कि मेरी जो रेंज है वो ये दोनों रेंज है, और आपको पहली रेंज इसे मानना है और दूसरी रेंज इसे मानना है। ये मैंने एक्सेल को बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये दिस इज द फर्स्ट रेंज, दिस इज द सेकंड रेंज। तो मेरा अभी मैंने जैसे यहाँ पर सिंपल लुकअप किया था, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया था। उसमें क्या हो रहा था कि मैंने ये चारों कॉलम सेलेक्ट किए थे और ये चौथे कॉलम पे आ रहा था, तो 1 2 3 4 मैंने इंडेक्स डाला था यहाँ पर। और अभी यहाँ पर मेरी 2 रेंज है और मेरा दूसरी रेंज पे ही प्रोडक्ट का नाम जो मुझे लुकअप करना है वो मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूंगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। लुक आई हैव गॉट दी प्रोडक्ट नेम दैट इज MI का प्रॉफिट सबसे कम है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूं तो मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली एप्पल आ जाएगा। क्यों, ये एप्पल का प्रॉफिट है। Guys, I hope I am able to make you understand. If you want me to repeat, I can repeat as well. Did anyone got how to apply reverse VLOOKUP? Do you want me to repeat once more, or I should go? Yes, sir, will be better. Yes, sir. Sir, I think you should repeat because Okay. it's not clear. Okay. I am repeating. Okay. I'll type in a question over here. थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपके बॉस आपके पास एक क्वेश्चन लेके आए हैं। सपोज मेरे बॉस मेरे पास एक क्वेश्चन लेके आए हैं। उन्होंने मुझसे ये पूछा है, who is trying to okay. उन्होंने मुझसे ये पूछा है, नेम द प्रोडक्ट which have earned the maximum profit. मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछा कि भाई मुझे प्रोडक्ट का नाम बताओ कि जिसने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया है, सो दैट कि मैं उसका जो परचेजिंग है उसकी परचेजिंग बढ़ा सकूं, ठीक है। तो दिस इज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड ही वांट्स टू नो दिस थिंग फ्रॉम मी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किसने किया है, मतलब कहाँ पर है मैक्सिमम प्रॉफिट, किस रो में है, ठीक है। तो मेरे पास ये रेंज है, उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल्स टू मिन, और इस रेंज में है
इस रेंज में है, आई हैव प्रॉफिट इन दिस रेंज। तो मेरे पास आ गया कि भाई ये प्रोडक्ट ये है जो मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू है। अब किस प्रोडक्ट की ये सॉरी ये तो मिनिमम आ गई, आई एम सो सॉरी, फॉर मैक्सिमम विल अप्लाई मैक्स। तो हमारे पास एक 1 सेकेंड, ये हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई। दिस इज द रेंज हमारा E1 से E8 तक। आई हैव बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड E9 ऑल्सो। सो दिस इज द रेंज एंड आई हैव गॉट द मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे ये नहीं पता ये किस प्रोडक्ट की है, उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर रिवर्स वी लुकअप लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले रिवर्स वी लुकअप के लिए फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, लुकअप वी लुकअप ही लगा रहा हूँ मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहा हूँ बस। वी लुकअप किससे लुकअप करना है मुझे भाई, इससे लुकअप करना है। ठीक है, क्या लुकअप करना है, मेरी टेबल क्या है। टेबल नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेल होता है वो लेफ्ट टू राइट ही रेंज को मानता है, बट ये हमें एक्सेल को समझाना पड़ेगा कि भाई मुझे जो पहला रेंज मानो वो तुम इस कॉलम को मानो, दूसरा रेंज मानो वो इस कॉलम को मानो। तो उसके लिए एक्सेल ने ही एक फंक्शन बनाया है जिसे कहते हैं चूज फंक्शन। ठीक है, मैंने इसमें चूज फंक्शन लगाया। अब ये फंक्शन क्या कहता है कि सबसे पहले इंडेक्स नंबर बताओ कि आपके रेंज में कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि मैंने कहा भाई मेरे रेंज में पहले कॉलम से लेकर दूसरे कॉलम तक है, मैंने ये बता दिया इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 कॉलम का ही यूज़ करना है, मुझे एक प्रॉफिट का यूज़ करना है और दूसरा मुझे प्रोडक्ट नेम का यूज़ करना है। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको पहला कॉलम कौन सा लेना है और दूसरा कॉलम कौन सा लेना है। पहले मुझे पहला पूछ रहा है तो मैंने कहा भाई मुझे प्रॉफिट को पहला मानना है और मुझे प्रोडक्ट नेम को दूसरा मानना है, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो पहले मुझे इसको करना है, दूसरा इसको करना है। तो ये मैंने एक्सेल को अब बता दिया। उसके बाद मैंने चूज का फॉर्मूला कर दिया क्लोज। अभी यहाँ पर चूज का फॉर्मूला क्लोज हो गया है। यहाँ तक समझ में आ गया, चूज फॉर्मूला समझ में आया। Get it. ठीक है, थैंक यू यार, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। तो ये मैंने एक्सेल को बता दिया कि मुझे प्रॉफिट को एज रेंज 1 कॉलम 1 रेंज मानना है और प्रोडक्ट नेम को कॉलम बी मानना है सेकंड रेंज। अब यहाँ पर 2 ही रेंज है तो मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर बताना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 2। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर आप 0 1 कुछ भी डाल सकते हो, मैं 0 डालता हूँ हमेशा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर 0 डाल दिया, ब्रैकेट फॉर्मूला कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर मैं एंटर दबाऊंगा, मुझे माइक्रोमैक्स का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो, आप अपने बॉस को बता सकते हो भाई माइक्रोमैक्स इज द प्रोडक्ट who have earned the maximum profit। ठीक है, आई होप नाउ आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes. Thank you so much. Okay, I think we have covered few of the topics। ठीक है, अब हम यहाँ पर सम इफ लगाने की कोशिश करेंगे। सपोज यहाँ पर मेरे पास ये जो डेटा है ये मल्टीपल होता, मैं इसको डेटा को थोड़ा सा उस चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं फॉर्मूला यूज़ कर जिस पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर पाएँ। तो हम अभी सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मेरे मैनेजर ने पूछा है कि भाई मुझे बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट दैट आई हैव अर्नड फ्रॉम सेलिंग OnePlus। ठीक है भाई, बता देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दो हमें। ठीक है, तो मैं इसके लिए सम इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ। सम इफ का फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले आप पढ़ने की कोशिश करो कि ये फॉर्मूला क्या कर रहा है। ये पहले मुझसे रेंज मांग रहा है। ठीक है, तो रेंज मेरा क्या है भाई, मेरी ये रेंज हो गई। ठीक है,
अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, किसका किसका मुझे जानना है, मुझे जानना है वन प्लस का, ठीक है। तो मैंने वन प्लस सेलेक्ट कर लिया, ये मेरी क्राइटेरिया हो गया। अब क्या जानना है, प्रॉफिट जानना है मुझे, तो वो मेरी हो जाएगी सम रेंज। सिंपल है। सबसे पहले मुझे पूछा कि भाई रेंज क्या है, रेंज मेरी ये हो गई। उसके बाद मुझसे पूछा क्राइटेरिया क्या है रेंज का, वो मेरा वन प्लस हो गया। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है सम रेंज क्या है, मतलब मुझसे प्रॉफिट पूछा है। सम रेंज इज द रेंज कि जो भी आपको चीज़ पूछी गई है वो आपकी सम रेंज हो जाएगी। मुझे प्रॉफिट पूछा गया है, ठीक है, तो मैंने ये प्रॉफिट सेलेक्ट कर लिया। अब ये मुझे बता देगा कि भाई ये 688458 इसका प्रॉफिट रहा है। अब अगर मैं लगा के देखूं कि ये सही है कि गलत, तो मैं यहाँ पर आके वन प्लस का जस्ट टू डू द QC, ये मैं इनको ऐसे सेलेक्ट करके इनको देखूंगा, तो भाई ये 688458 ये मेरा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई यू गाइज about SumIF. Yes, we got it, sir. So put to go. Okay. Okay. ठीक है, ठीक है। तो अब मैं सपोज ये जानना चाहूँ कि मुझे सपोज यहाँ पर मुझे वन प्लस की जगह STC का करना होता, फिर भी कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। SumIF लगाया, अब तो मैं फास्ट लगा सकता हूँ, मुझे आ गया है। अब ये लगाया और ये प्रेस करा, STC का मेरा ये आ गया, मैंने फिल्टर लगाया, ये आ गया मेरा, ठीक है। इसका मैं सम करूँगा, यहाँ पर मुझे सम लिख के 9386, बिल्कुल राइट है, ठीक है गाइज। सो गाइज it has already 30 minutes since our session. अभी आपके 30 मिनट्स में आपकी क्वेरीज लेना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई डाटा हो तो आप शेयर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन जब मिलेंगे तो आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आप लोग की जैसी रिक्वायरमेंट है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एज वेल, सो दैट वो भी मैं आपको बता पाऊँ। So Rian, do you have some data in your hand that we can take up for the queries? Or Anurup, do you have any data? This is an open forum. Anybody can give me any data, or anybody can, if you don't have data, even then you can ask for anything related to Excel. Everyone is free to ask queries. Rian, are you there? Okay guys, I'll take it as no, and thank you very much for joining guys. Thanks a lot, and definitely I would like to know your feedbacks. How was the session? Rian, if it is possible, just let me know how did they actually like the session, and if anything else they want me to add, or any topic you want me to discuss in next session, you can definitely suggest. I'll cover that topic in the next session for sure. Sure, bhai. I'll make this some question and everything. I'll make it, and we'll do like next week on the same either Saturday or Sunday, like we always free. So Sure. I'll let you know about the feedback and everything. Sure. Sure. Thank you so much. Thank you, Neetu. Okay, welcome Neetu. Welcome. So guys, thank you so much for joining. I hope you liked the session, and I would eagerly wait for your feedbacks, guys. I would like to add everything that you would like me to add to make this session interesting and fruitful for you guys. So thank you so much once again for joining. Arvind Kumar signing off.